Hello everyone, my dear students. Hope that everything is fine going on and you are staying safe in your home. So today here I have brought you the class 8 biology, and this is the third lecture of the class 8 biology of the crops production and management chapter. So till now we have studied in our previous lecture about the manures, and these manures we have seen that they supply raw materials, that is the essential nutrients to the soil and to the crop plant. So these essential materials जो है, this can also be supplied by the fertilizers. These fertilizers are inorganic materials, inorganic substances which can supply nutrients to the soil. So fertilizers क्या होता है? Here we can see fertilizers are the inorganic materials. Inorganic means they are made up of chemicals. They are non-living substances. Non-living substances से बनता है, chemical से बनता है laboratory में, and they can supply nutrients to the soil. Soil को nutrients supply कर सकता है, जो crop plants है उसको भी essential nutrients. We have studied that there are 16 essential nutrients that are required by the crop plants, और soil को भी 16 essential nutrients ज़रूरत है. तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये सब सप्लाई करता है. कौन सप्लाई करता है? फर्टिलाइजर्स कैन सप्लाई, एंड दे आर सिंथेटिक, दैट इज दे आर आर्टिफिशियल, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन द लैब बाय यूजिंग द केमिकल्स. So now there are four major types of fertilizers. They are: number one, phosphoric fertilizer. Phosphoric fertilizer. Second number we can see they are potassic fertilizer. Okay. Third number is the nitrogenous fertilizer, and fourth number is our complex fertilizer. So here phosphoric fertilizer, by the name itself suggests that it supplies phosphorus to the soil. Phosphorus supply करता है. So it is going to supply only the phosphorus and nothing else. So here example we can see. So supply phosphorus to the soil. Example here: single super phosphate. There is single superphosphate, double superphosphate, triple superphosphate. These are some of the examples of fertilizers which can supply phosphorus to the soil, and so they are also known as phosphoric fertilizer, जो सिर्फ phosphorus supply कर सकता है. फिर जाकर के जो सिर्फ पोटेशियम सप्लाई करेगा, that is supply potassium to the soil, are known as, क्या बोलते हैं उसको? They are known as potassic fertilizer. For example, we can see here potassium nitrate, KNO3, potassium nitrate. So it can supply potassium to the soil, and nitrogenous fertilizer will supply nitrogen to the soil. Nitrogen supply करेगा. So this nitrogen is a very much essential nutrient, essential element for the crop plants for their growth and development. And out of all the 16 essential nutrients, जो सबसे ज़्यादा plant को चाहिए growth and development करने के लिए, that is the nitrogen. Okay. So here nitrogen will be supplied by urea and many other fertilizers are there. Complex fertilizers are those fertilizers which supplies more than one nutrients, जो एक nutrient से ज़्यादा supply करता है. For example, we can see here many examples are there for the complex fertilizers. Okay, for example, we see urea, ammonium, phosphate is also an example. So from the part urea and ammonia, both from these parts we are going to obtain nitrogen. From the phosphate we are going to obtain phosphorus. तो यहाँ पर हम लोग को एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, that is supplied more than one nutrients. एक से ज़्यादा मिल रहा है, that is why it is known as complex fertilizer. Okay, and यहाँ पर some more example, one more example we can say nitrophosphate. तो nitrophosphate से भी क्या होगा? Nitrogen, from the word nitro we can see nitrogen, and phosphate means phosphorus. So nitrophosphate is going to supply nitrogen and phosphorus to the crop plants.
One another example, one another type of this fertilizer is complete fertilizer. Okay. So complete fertilizer जो होता है, these are those type of fertilizer which supply all the three essential macronutrients to the soil. Okay, which supplies all the three essential macronutrients. So ये तीन essential macronutrients जो बहुत ही large quantity में ज़रूरत है प्लांट को growth and development के लिए, they are nitrogen, phosphorus and potassium. So ये तीनों supply करता है. Okay, this fertilizer will supply all of this, that is nitrogen, phosphorus and potassium, and so they are also known as NPK fertilizers. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Complex fertilizers are also known as NPK fertilizers because they can supply all the three nitrogen, phosphorus and potassium to the soil and to the crop plants. तीनों supply कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग complete fertilizer बोलते हैं. So now here let us see what are the differences between fertilizers and manures. आखिर manure और fertilizer में differences क्या है? So let us make two columns here. One is the fertilizer, another one is our manure. So here two columns we have made, and now first point here, let us see about how they are made. So manure are made from organic wastes, है ना, organic. They are organic in nature, made from organic wastes, and so they are organic in nature, means they are made up of substances which were living in the earlier. So these fertilizers are inorganic. ये सब क्या होता है? These are inorganic substances and made by using chemicals in the laboratory. ये सब chemical से बनता है. Manures जो है, manure सब ऑर्गेनिक वेस्टेज से बनता है, जैसे किचन वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, फार्म यार्ड मैनर, स्ट्रो ऑफ राइस, हस्क ऑफ राइस, ये सब से बनता है. ग्रीन प्लांट पार्ट से बनता है. सेकेंड नंबर पॉइंट इज दिस मैन्योर्स जो होता है ना, दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस. यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस. बट दिस फर्टिलाइजर्स दे डू नॉट कंटेन एनी ह्यूमस. फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस नहीं होता है. सो हियर लिटल और नो ह्यूमस. यहाँ पर ह्यूमस नहीं होगा, अगर होने से भी बहुत कम ह्यूमस होगा. ह्यूमस एक ऐसा चीज़ है, ब्लैक रेसिड्यू है, जो कि क्या करता है? सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है. एंड सो वाटर इज एबल टू रिटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर. Soil is able to retain more amount of water required for the development of the crop plants. But यहाँ पर humus नहीं है. Here will be humus. Third number is that manures जो होता है ना, manures are not nutrient specific. Okay, means nutrient specific नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ manure में जैसे कि fertilizer में क्या था, potassic fertilizer था, the potassic fertilizer will supply only potassium. Phosphoric fertilizer will supply only phosphorus. Nitrogenous fertilizer will supply only the nitrogen. ऐसा मैन्योर में नहीं होता है. नाइट्रोजनस मैन्योर ऐसा करके, पोटासिक मैन्योर ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. सो अगर कहीं जगह पर, कोई जगह पर मैन्योर है, तो उसमें सब के सब मिनरल्स, उसमें सब के सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगा. सिर्फ एक न्यूट्रिएंट वाला मैन्योर हम लोग नहीं बना सकते. जैसे फर्टिलाइजर्स में बना सकते हैं, यहाँ पर नहीं बना सकते. सो हियर नंबर 3 न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है ये सब क्या होता है? दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, दैट इज दे कैन बी रिच इन ओनली वन न्यूट्रिएंट ऑल्सो समटाइम्स. सिर्फ फॉस्फोरस वाला होता है, सिर्फ पोटासियम वाला, सिर्फ नाइट्रोजन वाला, ऐसा करके होता है. ओके, सो फोर्थ नंबर यू सी मैन्योर जो है, मैन्योर आर नॉट सोलूबल इन वाटर. नॉट सोलूबल इन वाटर. यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, ऑर्गेनिक वेस्टेज होगा, जैसे कि किचन वेस्ट, ग्रीन प्लांट पार्ट्स जो होता है, तो वो सब ग्रीन प्लांट पार्ट्स वो सब डिकम्पोज होने के बाद वो सब ज़्यादा आसानी से पानी के साथ घुल मिल नहीं सकेगा, सोलूबल नहीं होगा. अगर सोलूबल होता तो क्या हो सकता? यहाँ पर ये प्लांट्स का जो रूट्स होता है, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स विल बी एबल टू एब्जॉर्ब वाटर, विल बी एबल टू एब्जॉर्ब दिस मिनरल्स. यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होगा
ये सब जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर होता है, तो न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर सॉइल के अंदर में जो वाटर होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। दोस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स गेट मिक्स विद दिस वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, और जब रूट्स इस वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पर जो इसके अंदर में वाटर के साथ जो घुल मिल गया है मिनरल्स, वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है रूट को। बट यहाँ पर मैन्योर जो है, मैन्योर आर इनसोल्युबल इन वाटर, दैट मीन्स मैन्योर जो है दे कैन नॉट मिक्स विद वाटर प्रॉपरली, फुल्ली, कंप्लीटली। सो यहाँ पर मैन्योर विल बी डिफ़िकल्ट टू बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। प्लांट मैन्योर के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, उतना आसानी से नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। बट यहाँ पर फर्टिलाइजर्स में जो है दे आर सोलूबल इन वाटर, फर्टिलाइजर जो होता है दे आर सोलूबल इन वाटर एंड सो दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स इजीली, सो कैन बी एब्जॉर्ब्ड readily by the plants वो लोग को readily मतलब बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड हियर cannot be absorbed easily, यहाँ पर आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा because they are not soluble in water. नेक्स्ट नंबर 6 here we can see, नंबर 6 में क्या हम लोग लिख सकते हैं, yes they are bulky and voluminous, बल्कि एंड वोलुमिनस। मैन्योर जो होते हैं वो सब बहुत लार्ज अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है। इफ़ यू वांट टू सप्लाई मैन्योर टू द क्रॉप प्लांट्स, अगर मैन्योर से ही काम चलाना चाहते हैं देन इट विल बी रिक्वायर्ड इन वेरी मच लार्ज अमाउंट, वेरी मच वॉल्यूमिनस अमाउंट। बट हियर ये सब जो है ये दीज आर हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स जो होता है वो तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स से ही बनाते हैं, मतलब ये सब जो है इसमें कोई और रेसिड्यू नहीं बचेगा। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, न्यूट्रिएंट ही होता है, जो प्लांट को ज़रूरत है वही न्यूट्रिएंट्स होता है। सो दे आर न्यूट्रिएंट रिच, इसमें बहुत हाई कंसंट्रेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। सो दे आर नॉट बल्की एंड वोलुमिनस, मतलब थोड़ा सा भी अगर हम लोग सप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा भी उससे भी काम चलेगा। ओके इसका ये थोड़ा सा अमाउंट और मैन्योर का ये बहुत ज़्यादा अमाउंट क्या होगा, बराबर में होगा। So they are not required in much amount. Okay, so here next one, disadvantage of fertilizers. When we use fertilizers we have seen that there are many advantages कि nutrient specific होता है, they are not required in large amount, ये सब उसका advantage होता है। they are not bulky and voluminous, these are some of the advantage of fertilizers, and fertilizers are somewhat much more advantageous than the manures. But फर्टिलाइजर्स ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज फर्टिलाइजर्स का भी होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स आर मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स है। तो जब यहाँ पर क्रॉप फील्ड में हम लोग अप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर्स को, एंड दिस इज द क्रॉप फील्ड हियर, व्हेन वी अप्लाई फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप फील्ड, एंड रेन जब होता है, व्हेन इट रेन्स, तब रेनिंग से क्या होगा, रेनिंग से इसका दिस रेन वाटर विल ड्रेन अवे द फर्टिलाइजर्स, एंड ये कहाँ पर चले जाएगा, इफ़ इट गोज टू सम पॉन्ड और इफ़ एनी वाटर बॉडी, देन व्हाट विल हैपन, ये सब फर्टिलाइजर्स जो है, फर्टिलाइजर्स विल गो इनसाइड द वाटर बॉडी एंड इट विल कॉज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। उससे क्या होगा, एक्वाटिक फिशेस, एक्वाटिक एनिमल्स दे कैन डाई आउट ग्रेजुअली, एक्वाटिक प्लांट्स जो है वो सब भी डाई आउट कर सकता है। सो हियर कॉजेस क्या कर सकता है, वाटर pollution, they can cause water pollution, and second number is that they can change the pH को चेंज कर सकता है, changes pH of the field, यहाँ पर जो क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड का pH जो होता है, हाइड्रोजन पोटेंट जो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, pH मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके तो ये pH जो है उसका चेंज कर सकता है। उस pH चेंज करने का मतलब है कि फील्ड को जो है वो ज़्यादा एसिड बना सकता है, एसिडिक नेचर का बना सकता है, या फिर फील्ड को ज़्यादा बेसिक नेचर का बना सकता है। फील्ड मस्ट हैव टू बी रिमेन इन न्यूट्रल कंडीशन, फील्ड जो है वो एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, बेसिक भी नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। बट एडिंग फर्टिलाइजर कैन चेंज इट टू एसिडिक और बेसिक में कन्वर्ट कर सकता है। सो हियर दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो नेक्स्ट वन स्टेप is about the after we have applied
fertilizers to the crop plant, then what we have to do, we have to do irrigation. So irrigation क्या होता है? Irrigation means the process of supplying water to the crop plants. Process of supplying water to the crop plants. ठीक है, this is known as irrigation. So what is irrigation? The process of supplying water to the crop plants, to the crop field, is known as irrigation, and this irrigation is required very much. So what are the advantages and what are the disadvantages of irrigation? What are the advantages of irrigation? What are the types of irrigation? Let us see here. So types जो होता है इसका, types of irrigation, they are broadly classified into two types. First one is the ancient or traditional methods of irrigation, and second number is the modern methods of irrigation. So traditional methods and modern methods, these are the two types, two different categories of irrigation. So traditional method में हम लोग क्या यूज़ करते थे? We used MOT, MOAT, MOT. We used MOT, फिर जाकर के चैन पंप सिस्टम, राहत सिस्टम, चैन पंप सिस्टम, फिर जाकर के we also used ढेकली, DHEKLI, ढेकली, etc. So these are the traditional methods. So we have to just remember some of the traditional methods. बस traditional method कुछ याद रखना है. We also used motor pumps also traditional methods में. जो modern methods जो है ना, modern methods include mostly two types. They are sprinkler irrigation, sprinkler irrigation, and drip method of irrigation. Sprinkler method of irrigation and drip method of irrigation. So let's see here what are sprinkler and drip method. So in the sprinkler method of irrigation, this you might have seen in tea gardens. क्या होता है? There is one tube and this is a pipe that carries water, and here यहाँ पर एक rotating nozzle लगा हुआ रहता है जो rotate करता है, and यहाँ पर spray के through से क्या होता है? Water comes out in the form of spray and it rotates in every direction. Okay, this is known as sprinkler method of irrigation. And drip method of irrigation में क्या होता है? This you might have seen in the tea gardens, and now it is used for almost every crop, not only the tea. So drip method में क्या होता है? There are horizontal pipes like this. Horizontal pipes होता है. Suppose this is a bigger pipe which supplies water here, and here is one plant. यहाँ पर एक crop plant है. Here also one crop plant is here. So what will happen? There will be a nozzle, a slight leakage here. यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर क्या होगा? nozzle होगा. यहाँ पर पर्स किया जाएगा, यहाँ पर भी छोटा सा नोजल होगा. सो ये नोजल जो किया जाता है, दिस नोजल इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ लीकेज ऑफ वाटर, ताकि यहाँ से वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो लीक होकर के डायरेक्टली ये यहाँ पर जो रूट जहाँ पर है क्रॉप प्लांट का, वहाँ पर डायरेक्टली आकर के गिरे. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो वाटर falls down, comes down in the form of drop by drop water जो है वो आकर के डायरेक्टली यहाँ पर जहाँ पर उसका रूट है क्रॉप प्लांट का, वहाँ पर वो डायरेक्टली गिरता है. एंड इससे क्या होता है? सो दिस मेथड सेव्स वाटर. यहाँ पर वाटर सेविंग बहुत ज़्यादा होता है. यू कैन सी हियर, इफ वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप लाइक दिस, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ द वाटर यहाँ पर कुछ वेस्ट ही नहीं होगा. So these are the types of irrigation. Now let us see why is irrigation necessary, why is irrigation required. Why required, or we can say advantage. What are the advantage of irrigation? Irrigation आखिर हम लोग क्यों करते हैं? Irrigation का advantages क्या है? So here number one, irrigation is required for the germination of seeds. विदाउट इरिगेशन, विदाउट वाटर, अगर वाटर ना हो
तो सीड्स जो होता है, सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट, सीड्स विल रिमेन इन देयर डोमिनेट, उसका जो डोमिनेंट पोजीशन है उसी में रहेगा। सो व्हाट इज मीन बाय डोमिनेंट? डोमिनेंट का मतलब है द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सीड, जब वो कोई भी अपना मेटाबॉलिक ग्रोथ एक्टिविटी नहीं करता है, डेवलपमेंट नहीं करता है, सिर्फ वो रेस्पिरेशन करके जिंदा रहता है, दैट स्टेज इज नोन एज डोमिनेंट स्टेज। तो अगर इसको सीड को वाटर सप्लाई नहीं करते हैं, देन द सीड विल रिमेन इन इट्स डोमिनेंट कंडीशन, डोमिनेंट स्टेज में वो अपना वो सीड जो है वो रहेगा। सीड को वो अपना डोमिनेंट स्टेज से बाहर निकालने के लिए वाटर का जरूरत है। सो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। एंड सेकेंड नंबर इज दैट, हम लोग देख चुके हैं फर्टिलाइजर का केस में कि फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब करने के लिए फर्टिलाइजर जो होता है, दिस फर्टिलाइजर हैव टू बी फर्स्ट फुली मिक्स विद द वाटर, वाटर के साथ उसको मिलना पड़ेगा, सोलुबल होना पड़ेगा, मिक्स होना पड़ेगा। मिक्स होने के बाद क्या होता है, दैट वाटर अलोंग विद द मिनरल इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसी के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाता है। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। अगर वाटर नहीं होगा देन प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब द मिनरल्स, प्लांट्स जो है वो मिनरल्स भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। थर्ड नंबर में क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ टीलर्स, growth of tillers, TILLERS, tillers. So what is meant by tillers? Tillers means aerial branches जो होता है, प्लांट में एरियल ब्रांचेस जो होता है, दे आर नोन एज टीलर्स। एरियल ब्रांचेस मीन्स दोस ब्रांचेस, ये सब जो टर्मिनल ब्रांचेस है, ये साइड का जो ब्रांचेस होता है, दिस आर नोन एज एरियल ब्रांचेस। तो एरियल ब्रांचेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए वाटर का ज़रूरत है। So these are some of the advantages of irrigation and disadvantages इसका क्या है? Disadvantage is that they can cause water logging. Disadvantage में water logging हो सकता है। अगर water logging हो जाए then there will be the crops will submerge and there will be a loss of complete failure of the crops if we supply excess water. और अगर excess water हो जाए तो एक क्रॉप फील्ड से जितना भी हम लोग फर्टिलाइजर अप्लाई किए हैं, मैन्योर अप्लाई किए हैं, वो भी क्या होगा, ऑल द फर्टिलाइजर्स विल बी ड्रेन्ड अवे बाय द वाटर, बाय द इरिगेशन वाटर, और वो दूसरा के फील्ड में चले जाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, विल ड्रेन्स अवे न्यूट्रिएंट्स, जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए हैं फर्टिलाइजर मैन्योर के थ्रू से, उसको ड्रेन करके दूसरा जगह में पहुंचा देगा। एंड सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस है ये सब अगर एक्सेसिव इरिगेशन करे तब। Okay, so students, let us see about the next topic, that is harvesting कैसे करेंगे, फिर ये सब के बारे में देखना है। ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, that is going to come soon. So wait patiently and hit a like button if you have really enjoyed this video. Thank you very much.